Hello and a very warm welcome to Bharata First. You're watching Frank Talk with me, Frank Rausen Pereira. Since you're here, please like the video, subscribe, hit the bell icon, and then share the video so that more people get to know about Bharata First. Do subscribe to our newsletter to get some incisive content. The Bharata First team runs several quizzes. You can participate in them. If you like our content, please contribute to keep it alive. A small contribution that you make will go a long way in us bringing you this content. Let me also take this opportunity to inform you about Bharata First Knowledge Center, an initiative that will help each one of you in your competitive exams and transform the way you learn. Go to kc.bharatafirst.com for more details and register now. Experience a whole new way of gaining knowledge. Hundreds are already reaping the benefits of the Knowledge Center. Don't be left behind. Register right now. There's so much more that we have to offer at the Knowledge Center. All this information, along with some must-see recommendations, are in the description of the video. Please go through it. Well, it's time to begin our Frank Talk today, and I have a special guest on the program, a strong-willed lady who returned from the American dream to try and make dreams come true of an aspirational India. She has been working tirelessly at the grassroots level and making a huge difference. She was felicitated by the Prime Minister of India in 2018 and the then President Pranab Mukherjee as well. She has been bestowed several state and national level awards for her contribution to rural development. She has also featured in the list of 100 impactful and influential women and represented India at the St. Petersburg International Economic Forum, or SPIEF, 2019 in Russia. It is a pleasure to welcome on Frank Talk a young, dynamic, and highly intellectual Sarpanch, Srimati Bhakti Sharma. Bhakti ji, namaskar. स्वागत है आपका भारत फर्स्ट में, and welcome to Frank Talk. Thank you so much. It's a frank talk with Frank sir. Thank you so much. It's such a privilege the way you were talking about me. Thank you so much. The privilege and honor is mine to have you on this platform. I mean, the accolades I can keep talking about, and it's not enough. The entire day I can talk about the kind of work that you've done in a small little village called Barkhedi Abdullah, which is about 20 kilometers away from Bhopal, but has seen very less and very little development from a below poverty line village. She has now brought it up to a model village, and all credit goes to you. So I can take the whole day to talk about it, but let's start with what made you think of a career in politics, because that is something that does not come naturally. And many people, even now, even today, are very worried and very scared. Even parents do not want their children to get into politics for some reason. They'd say rather get into a government job rather than politics. So, first, there's this very strong misconception that people have that, they should not let their kids into politics. And it's easy to get into a government job, be a professor or advocate, or just take up any other career, for the living. Yes, of course, politics is not for living. Indeed, it is more or less like, that you're working for the society as a whole. If I talk about my journey, let me be very honest with you. So I come from an agricultural background, and my grandfather, my father, my brother, we are the third generation who are into the agriculture now. And I've been very, very closely associated with this village called Barkhedi Abdullah, because here our farms are, and then that's how we've been since our very childhood. We've been over there, we go over there. We meet the people, and of course हमारा एक घर यहाँ city में भी है. So वो एक ऐसा point था जहाँ पे when I wanted to just study more and stay abroad, but my father was very adamant of calling me back and saying कि तुम्हें यहीं पर अब रहना है, job वॉब करो नहीं करना, अब खेती बाड़ी करो. And I was like, Papa, agriculture is not my cup of tea. I can't do it. ये ट्रांजिशन जो है भक्ति जी, ये ट्रांजिशन जो है आसानी से हुआ या कैसी मुश्किलें थी शुरू में? भक्ति जी, ये ट्रांजिशन जो था अर्बन लाइफ से रूरल लाइफ में ट्रांजिशन जो किया था आपने, आसानी से हुआ या कुछ दिक्कतें थी? नहीं, बहुत दिक्कतें थी. तो जब वही डैड ने ये बोला कि तुम्हें यहाँ पर रहना है, अब हो गया, कहीं बाहर नहीं रहना. सो आई टोल्ड हिम मैं क्या करूंगी. कहते खेती बाड़ी करोगी जैसे सब लोग करते हैं. एंड वी हैव नॉट
you're not brought up in a sense that we do some kind of an inequality with you. Whatever bhaiya does, you also have to do the same thing. And that's how when I started going to the village, I started meeting the people and I started understanding how their lives are and what kinds of comfort zone they live in. It was then जब वहाँ चुनाव आए and I said, Papa, I think I should contest for the election. So rather than me approaching the people, the villagers approached dad and me that we want somebody who's educated and we want them to contest this election so that यहाँ पे तो कुछ अच्छा काम हो पाए, government policies आ पाए. तो पापा का पहला रिएक्शन क्या था? He was happy. He was not. It was not a person who would be कि नहीं नहीं क्यों लड़ना है. He was like, yeah, if she wants, she can go ahead. And eventually, when I was preparing for my civil services, he always had this thing in mind that you have to come into politics maybe 10 years down the line, maybe 15 years or 20 years down the line. So he was like, first you get, selected in a career and then get elected. But I never knew that selection was never my process and it was always the election. So the first vote I gave to myself, it was my first elections and it was at the grassroots level. And yes, the transition was a very difficult phase. Even till today, it is difficult because, there is this lopsided system in our country or across the society or the world where people are very skeptical about women. One thing. Second thing, we also see that it is not easy for people to trust a 25-year-old girl becoming a sarpanch of four, villages of a panchayat, and then expecting her to, get and understand the responsibilities, understand the mindset of the people. And of course, in the villages is a particular thing that they have this nuance of, staying in their comfort zones. So getting them out of the comfort zone, it is a very difficult task. So the transition, even till there, is difficult because I always believe that I'm a mediator between the villagers and the government, and I try to get their policies being implemented over here, and then also, being into a lot of policy making processes. It is difficult for me to even make them understand sometimes that what is the mindset of the people for whom you and me we are working. So I, rather than always taking myself as a sarpanch, I also take myself that yes, I'm a responsible citizen, and I really need to give the best to the government, to the administration, so that they can make better policies, and that's how the sarpanches across the country can implement that. So the capacity building is actually both ways. So the takeaway from this is you need to have a service-oriented mind, and that's something that you've always had because you always wanted to get into the UPSC. You tried there as well. I'll come back to UPSC in just a bit and talk about that too. But I want to talk about a couple of issues that you spoke about: women and sarpanch, and the kind of mentality that the society has towards women as a whole. And this issue of sarpanches, there are several women sarpanches across the country. There is no doubt about that. But there is always this fact, and I've seen it with my own eyes as well. The woman is just a face, but the everything else, rubber stamp. Exactly. Couldn't have put it in a better way. Rubber stamp, but it is the men who actually work through the women. We've seen an incident like this at the highest level in Bihar as well. So, why won't it happen at the sarpanch level? So when it's happened in a state like Bihar, it can happen at the grassroots level too. But you are not like that. You lead from the front, and it's not like the men in your house or in your family want to take the limelight away from you or take the stamp away from you. But how would you look at these two issues? How would you look at these two issues? This issue is not only pertaining in Bihar. Let me tell you one thing. It is across the country. And it is not only at the grassroots level when you talk about sarpanch. It is also at the Janpat level, the Jila Panchayat level, as the councillor level, the BDC level, at the block level, at the at the even mayors and MLAs. I must say that I have also witnessed people with my own eyes. So इसमें मुझे लगता है कि सबसे दो बड़ी गलतियां हैं, जो दो बड़े लूप होल्स हैं. पहला तो एक महिलाओं की तरफ से भी है कि आप अगर किसी पद पर हो तो आपको समझना पड़ेगा कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. This is not your right. This is not your privilege. You are given a particular set of responsibility. People have trusted you. So it is now your time to come up. Even if you've never come out, this is a golden opportunity for you to come. अब कितनी महिलाएं उसमें से आती हैं, ये बड़ा इशू है. आप अगर मेरे बारे में कह रहे हो कि भक्ति जी, you never let any male member of your family take the limelight. Can you believe this? कि ऐसा शायद नहीं होगा कि वो लेना चाहते हो और मैंने ना दिया हो. This could also be a thing, no? Maybe there were men who wanted, कि ये बस सरपंच रहेगी and we will take it over. There are people like that. जहाँ family नहीं होती, वहाँ secretary ऐसा सोचता है.
सेक्रेटरी जी नहीं सोचता, द GRS जो होता है वो ऐसा सोचता है. बट अगर मेरे को एक मौका मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली है, when people have trust, their trust in me, so it is now my responsibility to work. One thing is that, and second thing is that um, I really feel sad for those men who really make the women of the family as rubber stamp. तो सोसाइटी में एक्सेप्टेंस का जो एक इशू है, वो उसको हम कैसे कवर अप कर पाएंगे, इसके बारे में, टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्रैंक सर, टू बी वेरी फ्रैंक अगेन, आई हैव नो आइडिया. क्योंकि सोसाइटी भी इस चीज को एक्सेप्ट करे ना. व्हाट हैपेंस जनरली इज पीपल थिंक ऑफ फिटिंग द वुमेन. ये जो हम अक्सर सोचते हैं ना, लेट वुमेन फिट इन, ये जो फिट इन आता है, ये मुझे समझ में नहीं आता. लोग अक्सर कहेंगे कि महिलाओं को हम सेट कर देते हैं रिजर्वेशन देके, उनके साथ ये करके. महिलाएं पहली बात तो कितना इंटरेस्टेड है, और अगर हम उनको फिट इन क्यों करते हैं? कांट वी हैव सच एन एनवायरनमेंट जहां पे इजीली वो काम कर पाए? तो इन विषयों के बारे में सिर्फ आप और मैं डिस्कस करें इज नॉट इम्पोर्टेंट. इसके बारे में सोसाइटी कितना सोचती है, या सोसाइटी इसके लिए क्या करना चाहती है, ये बहुत बड़ा इशू है. एंड दिस इज नॉट ओनली अ केस व्हेन इट कम्स टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, इट्स आल्सो केस मेनी टाइम्स व्हेन वी सी एट द प्रोफेशनल फ्रंट आल्सो, जहाँ बड़ी बड़ी एमडीज महिलाएं होती हैं, बट उनका पीछे टेक ओवर करने के लिए, संभालने के लिए पुरुष हैं, जो उनको मैनेजिंग डायरेक्टर्स बना देते हैं, और खुद वो थोड़ा लाइमलाइट से कम रहते हैं, एंड दे ट्राई टू डू इट. तो हम महिलाओं को फिट इन करने की जो कोशिश करते हैं, एज पर दी गवर्नमेंट नॉर्म्स, एज पर दी रेजर्वेशंस एंड एन नंबर ऑफ थिंग्स, उसके बारे में महिला को तो खुद आगे आना पड़ेगा. एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, थिंग्स आर चेंजिंग इन द पास्ट 20 years. If you closely do the analysis of the data, you will understand that more than 30% of the women who were elected only on this basis कि वो इसकी पत्नी है, इसकी बहन है, या इसकी भाभी है, या इस परिवार से आती हैं, they have taken up the responsibilities. 20 years back, the situation was hardly 5 or 7% of the women knew their rights and duties. But now 30%. I'm expecting that in the coming 10 years or 15 years, it will be more than 40-45% of the women who would understand that yes, this is their responsibility. Because with the coming of the SHGs, especially the self-help groups and the आंगनवाड़ी में जो महिलाएं काम करने लग गई हैं, ये जो अध्यक्ष बन जाती हैं, प्रेसिडेंट बन जाती हैं अपने ग्रुप्स की, इनको बहुत ज्यादा लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की वजह से इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी है पंचायतों में. पीपल हैव स्टार्टेड लुकिंग अप टू देम, एंड ऑल्सो द यूनिटी ऑफ वुमेन हैज स्टार्टेड कमिंग अप इन द विलेजेस. तो उससे क्या हो गया, महिलाओं को बहुत ज्यादा बल मिलने लग गया है. जी जब बिल्कुल. महिला फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, when she is educated छोड़िए, when she is well aware, when she has exposure of the government policies, it is then she is able to take a stand not only for herself but also for the women across, and that gives her the confidence that yes, she can speak out her heart. Because in such groups, when we see these meetings, we see the collectors, the SDMs, the CEOs coming out over there and talking to these women. वो उनको एक exposure level अलग मिलता है, and that's how they learn, and that's how they grow, and that's how they contest elections, and then they come up. I was looking at one of the datas in Madhya Pradesh and also across. I got to know that at this point we have more than in alone in Madhya Pradesh we have 22,000 panchayats, and more than 2,000 3,000 we have young girls who have actually contested elections, and they're doing tremendously well in their jobs. So that's how I think when we encourage women, when we जब हम उनको प्रोत्साहन देते हैं, when the government, when the ministers and when the PM and the CM वो उनके बारे में बात करते हैं, that's how women they boost their self confidence, and they try that yes, they can do something really good. Absolutely. बहुत अच्छी बात की है आपने. It's very very important. बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखी है आपने. It's very important, and this is something that our history, our tradition, our culture, even our scriptures talk about. The Manusmriti chapter 3 talks precisely about this, about how a woman is a guru, a woman is a goddess, and women are given equal status as far as the Indian way of life is concerned. Shiva and Shakti are together and one form, and that is the strongest form that you can possibly have. And I think the sooner that सभी थे जब तक शक्ति उनके साथ मिली नहीं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और शक्ति का विरोध होता है. जहां शक्ति आगे बढ़ती है, वहां उसको विरोध भी झेलना पड़ता है. वो कितना उसको झेल के आगे बढ़ सकती है, ये उस महिला की शक्ति पे डिपेंड करता है. Absolutely. So the key to any man's success, or key to any family's success, is to keep the woman happy, because a woman is a sign of prosperity. And if you want to go ahead in life, and if you want to be prosperous in life, the woman of the house has to be happy. In a house where the woman is happy, that is a house that is always prosperous.
चलिए आगे बढ़ते हैं फिलॉसफी पे, काफी कुछ बात कर ली हमने भक्ति जी। हाँ चलिए, जी। तो लेट्स लुक एट इट द अदर वे अराउंड एज वेल. हाउ हैज हाँ जी। बीइंग अ सरपंच हेल्प्ड यू इन योर लाइफ? Oh, in lot of ways, in lot many ways, let me tell you. Um, मैंने एक चीज सरपंची से सीखी कि इंसान को अपनी गलतियां एक्सेप्ट करनी चाहिए, और आप जितनी जल्दी अपनी गलतियों को, अपने मिसकंसेप्शंस को एक्सेप्ट कर लेते हो, उतनी जल्दी आप आगे बढ़ते हो, पहली बात। दूसरा, मैंने सरपंच रहते हुए ये सीखा दैट एवरी मॉर्निंग आई गेट अप लाइक अ स्टूडेंट, and I always believe that I have to learn a lot of things. I always say that I am a layman, I'm a layperson, and I have to enhance the knowledge in whatever the skill I'm good at, and I have to do it. Third thing that I also learned, I have had a good confidence now. I guess I can speak well at these social platforms and at the public platforms now. This is also something that I've learned. And fourth, most important thing is that you have understood the crux that India will also in the future be in the villages. The maximum, the ample opportunities we have at the grassroots level is at the zenith, and it will stay over there. तो ये कुछ चीजें हैं जो मतलब मैंने अपनी लाइफ स्किल्स में भी देखी हैं, और पर्सनल और प्रोफेशनल फ्रंट पे दोनों चीजें मैंने मैंने बहुत कुछ सीखा है अपनी सरपंची से. एंड आई ऑल्सो अंडरस्टूड कि every person has a flame in them, like the lamp. Okay, अब आप उसको कितना चार्ज कर सकते हो, आप कितना आगे बढ़ सकते हो उसके साथ, ये इंसान पे खुद डिपेंड करता है. तो अगर आप अपने आप को एनहांस कर पाओगे, आप तब तब के सोना बन जाओगे, तो आप निखरोगे, आपकी मार्केट वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ेगी. These are very very small things that I have learned, and then I've made a book. I keep on writing all those skills, whatever I learned from the people. And ये भी मैंने वहीं से सीखा था कि शक्ति का विरोध होता है. ये भी जी मैंने वहां से सीखा कि हर दिन लोग आपको कैसे बातें करते हैं, बातें सुनाते हैं. मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ, जी बुंदेलखंडी, क्योंकि यहाँ पे गांव की भाषा उसी में. हमारे पास के सरपंच थे, जब मैं नई नई सरपंच बनी, तो उनको मैंने पूछा कि आपने भैया बहुत अच्छा काम करा है, आई एम श्योर आपका सबसे बहुत अच्छे संबंध होंगे, तो कुछ मुझे आइडियाज और टिप्स दे दीजिएगा. You know what did he tell me? He told me it will take you 6 months to understand कि आपको अंगूठा भी किधर लगाना है. तो मुझे ये समझ में आ गया कि लोग आपको हर दिन मजाक में अंडर एस्टिमेट करेंगे, जी. आपका मजाक उड़ाएंगे, बट आपने क्या सोचा है अपने बारे में, वो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है. दैट इज, वेयर डू यू थिंक यू स्टैंड is an important factor. People would always underestimate you. And yes, in villages there's one more thing that I've noticed, that शहरों के मुकाबले, मैं गलत हो सकती हूँ, बट ऐसा मुझे लगता है, शहरों के मुकाबले थोड़ा सा लोग बहुत ज्यादा आपके प्रति ग्रैटिट्यूड नहीं दिखाएंगे कभी, कि आपने ये कर दिया. दे ऑलवेज हैव लॉट ऑफ कंप्लेन्स. तो हमें ऐसे लोग अपनी लाइफ में मिलेंगे जो बहुत कंप्लेनिंग होंगे. हमको उनकी कंप्लेन्स को सुनना है, उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, और आगे बढ़ना है. आपको अगर पता है कि आप ठीक हो, जस्ट गेट रॉन्ग विद इट. तो कुछ लाइफ स्किल्स, कुछ प्रोफेशनल स्किल्स, कुछ लोगों से कैसे मिलना है, जनसंपर्क कैसे करना है, काम कैसे करना है, ये सब कुछ मुझे सरपंच ने, मुझे लगता है मेरे को एनहांस करा है. मुझे अपने अंदर का जो मेन तत्व है वो देखने को मिला है, दैट व्हाट आई एम एंड जी. व्हाट आई कैन बिकम, व्हाट आर द गुड क्वालिटीज इन मी, जिनको मुझे और एनहांस करके अपने आप को आगे निखार के आगे बढ़ना है. जी. Absolutely, absolutely. And the takeaway from me from this interaction is rural India is like a lady, beautiful. Yeah. And Yeah. the more we empower rural India and women, the further Yeah. that Bharata will go and will progress. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. Chaliye, so how have you helped the people while holding a position of authority? Because जैसे मैंने शुरू में भी बात की थी और जिक्र किया था कि the village that you're the sarpanch of, the 4 villages that come under you, were not in great shape. You know, just 20 Yeah. kilometers away from Bhopal, but so Hmm. much of lack of development and so less happening there. But ever since you came, something changed. So Yeah. what was that changed? इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस तो बहुत सारे हुए हैं. उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ 2-3 चेंजेस हैं जिनको मुझे लगता है डिस्कस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जी. हम लोगों ने सोशल चेंज पे बहुत काम करा है. The mindset of the people needs to change. Women were skeptical of not coming into Gram Sabhas. They came. Women thought that they would not be able to discuss their issues. They did.
Women also thought that they will never be financially independent. We made them financially independent. And most important thing that I understood, that sometimes it's not always about the infrastructure. It's all about also about monitoring. It's also about the इमोशनल सपोर्ट दैट वी कैन गिव टू द वुमेन. तो ये 3-4 चीजों पे हमने काम करा. जैसे हमारी पंचायत में जातिवाद, कास्ट सिस्टम, जिसको लेके सो कॉल्ड लिबरल्स या बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारी पंचायत में जातिवाद नहीं होता. हमारी पंचायत में कोई भी इन चीजों को नहीं मानता कि ये कोई व्यक्ति किस जाति का है, किस जाति का नहीं है, इसके साथ बैठना है, उठना है. ये जो हम बाहर एक इंडिया को लेके एक इमेज तैयार रहती कि अरे ये तो मंदिर में नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते. सो मेरी फैमिली 3 जनरेशन से इस पे काम कर रही है, एंड आई कैन प्राउडली से दैट टू यू टुडे कि हम लोग बिल्कुल भी इस चीज को नहीं मानते. पहली बात. दूसरी बात, विमेन इससे पहले हमारी ग्राम सभाओं में नहीं आती थी, उनकी कोई भागीदारी नहीं थी, वो कहीं बात नहीं करती थी. यू वोंट बिलीव, हमारी पहली ग्राम सभा में वी हैड मोर विमेन देन मैन. देखो, मैं आई एम अ फीमेल, आई एम अ गर्ल ऑफ द पंचायत. आई कैन गो किसी के भी घर में जाके बैठ के, जब वो खाना बना रही है मैं उसके साथ जाके बैठूंगी, उनका बेबी मेरी गोदी में आके बैठेगा, वो मुझसे बात करेगा, तो विमेन अपने इश्यूज मुझसे डिस्कस करेंगी. वो महिलाएं मुझे बताएंगी कि उनको क्या क्या घर में इश्यूज हैं, बाहर क्या इश्यूज हैं, स्कूल के क्या इश्यूज हैं, पानी के क्या इश्यूज हैं. महिलाएं ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर बातें बड़ी बड़ी नहीं करती. वो पहले बेसिक कम्युनिटीज और बेसिक नेसेसिटीज पे बात करती हैं. उनके लिए उनके बच्चे की एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. उनके लिए घर में पानी आ रहा है नहीं आ रहा, लाइट आ रही नहीं आ रही, उनकी बेसिक सुख सुविधाएं क्या है, घर के बड़ों को पेंशन मिल रही है नहीं मिल रही है, मेडिकल फैसिलिटीज की कोई दिक्कत तो नहीं है. हमने उनकी उन बातों को समझा और उनके ऊपर हमने काम करा. तो लोग अपने आप धीरे धीरे वो एक्सेप्ट करने लग जाते हैं कि हाँ, ये हमारी बातों को सुन के हमारे हिसाब से काम कर रहे हैं, अदर देन इनको पैसे की बहुत ज्यादा परवाह नहीं है. तीसरी चीज, तो जब ये महिलाएं पंचायत में आने लगी तो लोगों ने अपने इश्यूज हमसे डिस्कस करे. हमने कोशिश करी कि हम उनको इंडिपेंडेंट कैसे करें. आज की डेट में 40 से ज्यादा लड़के लड़कियों ने अपना खुद का बिजनेस हमारी पंचायत में शुरू करा है. हमारी पंचायत में 11 एसएजीज हैं, 11 एसएजीज, लेट मी टेल यू. ऐसा कोई काम नहीं आज हमारे यहाँ की महिलाएं नहीं कर सकती. चौथी चीज है, महिलाओं को रिस्पेक्ट चाहिए समाज में. पिछले 6 साल में हमारी पंचायत में हैरेसमेंट और डोमेस्टिक वायलेंस का एक भी केस सामने नहीं आया. कोई, मतलब ये चीजें कैसे होती हैं कि जब एक सरपंच स्ट्रांग होता है, जब वो अपने पॉइंट्स को स्ट्रांगली लोगों के सामने रखता है. बहुत सारी ऐसी पंचायतें हैं आज भी जहाँ ये सब चीजें सच में होती हैं, और ऐसी भी पंचायतें जहाँ ये सब चीजें नहीं होती हैं. तो हम कोशिश करें कि अपने आप को एटलीस्ट इतना एनहांस कर पाए कि हमारी पंचायत में कम से कम ये चीजें तो ना हो. एक महिला सरपंच अगर 10 जगह पे जाके लोगों के बीच में बता रही है कि सरपंची कैसे चलती है और उसकी पंचायत में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, ये बहुत दुख देने वाली बात है. और एक जी. चीज जिसके लिए मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ जो मैंने करी, वो ये है कि आई हैव स्टार्टेड, विद माय टीम, we together have started inculcating leadership qualities in young girls. See, always I cannot be a sarpanch. And I know that the kind of the system that we have, I will not be the sarpanch always. अब कौन रहेगा सरपंच? क्या हम ऐसी लड़कियां तैयार कर सकते हैं जो कॉन्फिडेंट हैं, जो अपनी बात रख सकती हैं, जिनको पॉलिसीज के बारे में पता है, जिनको पता है इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना है, जिनको एक एक्सपोजर हम दे सकते हैं. हमने ऐसी लड़कियों की टीम्स तैयार करी पंचायत में जिनको हम चाहते हैं कि यंग लड़कियां जब 21, 22, 23 साल में सरपंच का चुनाव लड़ेंगी, तो आप सोचिए कि आने वाले समय में उनके लिए कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी. और हमने जी. उनको काम करने का तरीका तो सिखा दिया है. तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए it gives me a lot of privilege and I feel happy when I say मेरी पंचायत में लड़कियां जब बाइक पे चलाएंगी, चलो दीदी अपन घूम कर आते हैं, आज हमें ये करना है. तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो हमको बहुत खुशी देती हैं. अब रही काम की बात, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में यस, हम लोगों ने स्टॉप डैम्स बनाए हैं, वर्किंग ऑन द रेन वाटर हार्वेस्टिंग. हमने अपनी पंचायत में 4 करोड़ की तो सड़कें सिर्फ बना दी हैं. The approach road is like amazing, it's beautiful. Almost 80% लोगों के पक्के मकान हो चुके हैं. The panchayat is ODF. The panchayat is continuously working on the sanitation, on the cleanliness, on the hygiene. And what more, there's 100% school enrollment. The girls are now studying in Bhopal. They're doing their MBA. They're doing some of them are preparing for medical. Some of them are nurse. And different aspects where they wish to go. They're doing it. What more? And then we are actually working on more than 60 government policies as of now, directly or indirectly linked. Be it the pension जो पहले से 40-50 लोगों को मिलती थी, the right people are now getting the right things, all thanks to the direct benefit transfers by the government.
So and सरपंच को कहा, all thanks to Bhakti Sharma. But let's not forget no, no, that, no, no, no. because I know you're going to be modest and humble and not accept it, but there No. has been change, and the panchayat has changed tremendously. There is no doubt about it. Frank And sir, this is my, Frank let's sir, give as credit. a Let's give credit where it responsibility. is due. No, no, It's no. the panchayat has come together, the villagers have come together, and everybody has come together and done this collectively. But in a collective too, you need a leader. Only then that collective will succeed. Frank sir, there's a saying in Hindi कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा. You know, as you know, when I talk to the youth of this nation, I really want to tell them that as a responsible citizen, this is जी. your duty to help the underprivileged, because you are the privileged ones. So if I am the privileged ones, by the grace of God, जब मेरे घर में 2 वक्त की रोटी है, मेरे पास एक घर है, एक पक्की छत है, मेरे पास एक वॉशरूम है जाने के लिए, लोगों के पास नहीं होता. मैं आई कैन फील दैट. मतलब मैं आपसे ये बात करती हूँ तो मुझे गूज बम्स आते हैं. इमेजिन अ गर्ल, अगर उसको कभी मान लीजिए उसको डिहाइड्रेशन हो जाएगा. इमेजिन एक लड़की या एक बुजुर्ग महिला 80 साल की, उसको अगर कभी उसको स्टमक अपसेट हो जाएगा उसका, वो क्या करेगी? तो उनके घर में एटलीस्ट एक वॉशरूम तो होना चाहिए ना जाने के लिए. ये छोटी छोटी चीजें हमें क्यों फर्क नहीं पड़ती? मैं कैसे सो सकती हूँ बारिश पे अपने घर में, जब मुझे पता है कि वहां पे किसी ने अपने घर में प्लास्टिक का वो लगाया हुआ है, पॉलिथीन के, पानी नीचे ना आए. तो आप और मैं प्रिविलेज सेक्शन है, और आपके मेरे इस डिस्कशन से, इस इंटरव्यू से अगर 10 लड़के लड़कियां भी समझ लेते हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मैं ये नहीं कहती जाओ जाके सरपंची का चुनाव लड़ो, नो नो नो. आप जिस समाज में रह रहे हो, जिस सोसाइटी में रह रहे हो, आपके घर में जो मेड आ रही है, आप उसका ही अगर भला कर दो, उसके बच्चे को अगर 1 घंटा पढ़ा दो, तो चीजें कितनी चेंज हो जाए. मैं ये नहीं कह रही 10 लोगों के लिए काम करो. आई वाज द प्रिविलेज्ड वन कि मुझे 3000 लोगों की लाइफ को देखने का मौका मिल रहा है. आप अगर एक की भी लाइफ को सही कर दोगे, तो एक एक मिलके एटलीस्ट वी कैन ऑल टुगेदर बिल्ड अ बेटर सोसाइटी, वी कैन बिल्ड अ बेटर इंडिया वेयर वी कैन स्टे टुगेदर. तो ये तो सबको समझना है. मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, लोगों ने मुझ पे ट्रस्ट दिखाया, मुझे चुनाव लड़वाया, मुझे चुनाव जितवाया. ना मैं चुनाव लड़ने गई, ना मैं बहुत ज्यादा वोट मांगने गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ. लोगों ने खुद कहा, उन्होंने चुनाव जितवाया. अब अगर किसी ने मुझे चुनाव जितवा दिया, मतलब उसने मुझ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी दिखा दी कि आई ट्रस्ट यू. Yes. छोड़ देना चाहिए, मुझे इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए. आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई डू हैव इमोशंस. कभी कभी मेरे इमोशंस आगे आ जाते हैं. बट यस, एवरी पर्सन हैज अ गुरु, एवरी पर्सन हैज अ मेंटोर, लाइक अर्जुन हैड कृष्णा टू टेल हिम कि युद्ध में अभी हथियार डालने का समय नहीं है, युद्ध लड़ने का समय है. बिकॉज पूरा समय आपके आसपास एक नेगेटिव ऑरा है. क्योंकि जब आपका विजन बड़ा होता है और आपका सर्कल भी बड़ा होता है, उस सर्कल को कम करने की आवश्यकता है. तो वो बड़े विजन के साथ लोगों के आपके प्रति टिप्पणियां, आपके प्रति लोगों के कमेंट्स आपको बहुत निराश करते हैं. उस समय when you're in your best sense, when you're not in your flesh, but yes, when you're in your soul, you understand कि ये सब छोड़ के हमको आगे बढ़ना है. So with all those negative aspects, again try to have a positive bhakti in me who can work the way she's working. Amazing. Since we are here and since we are talking about this particular aspect, आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने यूपीएससी के बारे में बात की थी शुरू में. तो आई अंडरस्टैंड दैट यू ट्राइड टू गेट इनटू द यूपीएससी, लेकिन बहुत तैयारी की आपने, और जब हुआ नहीं तो आप डिप्रेशन में चली गई थी. एंड डिप्रेशन के बारे में लोग ज्यादातर बात नहीं करते हैं. Yes, of late at least people have started opening up about this issue, but as a society, if you look at it, समाज के रूप से अगर देखते हैं इस इशू को, तो it's not spoken about very openly. It's just thought of कि एक बहुत छोटा इशू है या इसको रहने दो types. So how difficult an issue is depression? How did you get over it, and what would you like to say about this if you want to speak about it? I will of course. हर इंसान की लाइफ में ऐसा टाइम आता है जब वो डिप्रेस्ड होता है. डिपेंड करता है कि वो कितने स्केल पे उसके अंदर घुसता जा रहा है. हम देख रहे हैं आजकल लोग जो हैं बड़े बड़े पदों पर होते हैं, एंड देन एक दिन खबर आती है सुसाइड कर लेते हैं. लोग बड़ी बड़ी जगहों पर होते हैं, उनको मान सम्मान होता है, लोग उनको अपने रोल मॉडल समझते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने भी अपनी मॉम से बात कही थी कि मामा मेरा पेपर नहीं क्लियर हुआ, मेरी लाइफ में कुछ बचा नहीं है, क्योंकि मैंने जो पढ़ाई करी है उससे मुझे यहाँ जॉब नहीं मिलने वाली. और मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, बिकॉज मेरा बिजनेस माइंडसेट को इतना है नहीं कि नहीं मैं कोई अच्छा बिजनेस कर पाऊंगी. ये बात है 2012 की.
2012 and 13 दोनों की बात है ये, क्योंकि कंटिन्यूस फेलियर्स मिल रहे थे, जो सिलेक्शन जहाँ हुआ भी था वो पेपर रद्द हो गया था विद फॉर लॉट ऑफ गवर्नमेंट इश्यूज उसमें। तो मेरी मॉम ने उस समय मुझे बहुत एक कांस्टेंट सपोर्ट देती रही छोटी छोटी चीजों को लेके। जब मैंने उनसे ये कहा कि मुझे सच में सुसाइड करनी है, आज तो मैं बहुत हंसते हुए बोलती हूँ, बट मैं इमेजिन करती हूँ कि एक 22-23 साल की लड़की जब अपनी माँ से ये कहे दैट कि मामा आई शुड एंड माई लाइफ, तो बहुत सारे मदर्स होती हैं क्या कर रहे हो ये वो। मेरी मॉम बहुत चिल्ड आउट थी, उन्होंने कहा इफ यू वांट टू एंड योर लाइफ आई नॉट से नो टू यू, बट डू समथिंग, कि अपनी बॉडी जो है इसको दान दे दो। योर चाचा इज ऑन डायलिसिस, give your kidneys to him, you have eyes, your body is good, your skin is good, your liver is good, everything is good, your heart is good, so try and donate everything so that तुम्हारी लाइफ का, तुम्हारे शरीर की चीजें लोगों में काम आ जाए। मैं कहा दिस वुड हर्ट, कहती बट वंस यू आर डेड नथिंग इज गोना हर्ट। बट इमेजिन कि एक माँ अपनी बेटी से बात कह रही है, so she was continuously supporting me कि life does not end here when you can't clear something, and to be very honest, मैं हम लोगों को देखो, हम लोग अंतर्यामी नहीं है। No person can have a big vision कि उसकी लाइफ में आगे क्या है, and life is all about, life is unpredictable one thing, and there are a lot of twists and turns, that's how you grow। मैं जब जब अपसेट हुई हूँ तब तब लाइफ ने मुझे कुछ बहुत बड़ी चीजें दी हैं, बहुत बड़ी चीजें। मैं आपको एग्जांपल्स बता सकती हूँ। तो जब मैंने ये सुसाइड की बात करी, उसके 10 दिन के अंदर अंदर मुझे वीजा मिल गया, और मेरी मॉम ने कहा तुम बाहर जाओ, घूम फिर कर आओ, बिकॉज माई फैमिली अमेरिका में, यू विल फील गुड। अब जब मैं वहां पे सोच रही थी कि मैं अपनी लाइफ को अच्छे से जीऊंगी, ट्विस्ट आया, डैड ने वापस बुलाया। मैं यहाँ समझ रही थी, गाँव जाके बच्चों के साथ खेल रही थी, स्कूल जाके पढ़ा रही थी, तब सरपंच का चुनाव आ गया। मैं जब सबसे ज्यादा अपसेट थी जिस दिन 31 दिसंबर को, उस दिन मुझे कॉल आता है दैट यू बीन सिलेक्टेड फॉर द 100 वुमेन अचीवर्स ऑफ द कंट्री एंड यू विल बी फेलिसिटेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशन। उसके बाद में जब, तो मुझे ये समझ में आ गया कि ये जो सुपर पावर है, आई एम सॉरी बट आज हम आपके और मेरे बीच में फिलोसफिकल बात हो रही है, बट ये जो सुपर पावर है ये हमको उस पॉइंट पे लाके कुछ देती है जब हम हारते हैं, और ये सबके साथ ऐसा है। बट डिपेंड करता है कि हमारे अंदर कितना पेशेंस है या कितना परसिवरेंस है, दैट वी कैन वेट टू हैव दैट बेस्ट। एंड माइंड यू, इवन इन योर लाइफ, इवन इन माय लाइफ, वी डोंट सी अ रे ऑफ होप। वो कभी भी नहीं दिखती, वो एकदम से आती है। हम ये आती नहीं है। कहेंगे हाँ मुझे दिख रहा है। आप बताओ, क्या आपको अपना विजन दिख रहा है कि आप नेक्स्ट वीक क्या करने वाले हैं, एक महीने में क्या करने वाले हैं, कि एक साल में क्या करने वाले हैं? आप नहीं बता पाएंगे मुझे। तो नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा। एवरी डे इज लाइक, एवरी डे फॉर मी इज अ रोलर कोस्टर राइड, लेट मी टेल यू। एकदम से आपका कॉल आता है दैट यस वी हैव टू डू एन इंटरव्यू, लाइक ओके गुड, this is something new for me, this is exciting for me, sitting with you, chatting with you, having a talk with you, having a good conversation with you, learning from you is itself is an opportunity for me. Being on this platform is an opportunity for me. So similarly, I always take the life as it comes now, because I've understood one thing, people have to overcome this thing कि ये नहीं हुआ तो लाइफ खत्म है। मैं सबसे कहना चाहती हूँ, ये नहीं हुआ ना, तो देश, अपने आप को देखो कि तुम प्रिविलेज सेक्शन हो। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ, क्या होगा बहुत से बहुत, बहुत से बहुत क्या इतने बुरे हो कि 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकते? ड्राइवरी कर लेना, किसी के बच्चे को पढ़ा देना, किसी आज आज हर इंसान चाहता है उसका बच्चा पढ़े। तो लोग डिप्रेशन के बारे में इसलिए बात नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि उनका समाज में मजाक उड़ जाएगा। साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजी पढ़ना, साइकेट्रिस्ट के पास जाने से मजाक, ये हमारी गलतियां हैं। हमारे आज के जो हमारे फूड हैबिट्स हैं, जैसे एक और बहुत बड़े आने वाला इशू ये है कि हमारे जो फूड हैबिट्स हैं, जो हमारे स्लीपिंग हैबिट्स हैं, उनसे हमारी बॉडी कितना डिस्टर्ब हो रही है। आज कोई इस पे बात नहीं करेगा, बट फ्रैंक सर, लेट मी टेल यू, next whenever you will take an interview, whether in 5 years or 10 years, you will ask the question to somebody कि क्या हमारे स्लीपिंग हैबिट्स जो हैं, क्या इनसे हमारी लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हुई है, क्या इससे हमारा एवरेज लाइफ जो है वो कम हुआ है, क्या लोग परेशान हैं? दिल से यस, क्योंकि जी, अभी इसकी शुरुआत हो चुकी है बहुत बड़े स्केल पे। तो बिल्कुल शुरुआत ये हो चुकी है और लोग हमें कम से कम हमें बात कर रहे हैं इसके बारे में। अभी आप भी बात कर रही हैं इसके बहुत बारे में। कम मैं कर रही हूँ, बट मैं मुझे दुख होता है जब कोई किसी के सामने कहता है कि यार स्लीपिंग साइकिल की वजह से मेरी बॉडी साइकिल डिस्टर्ब हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो लोगों को डर लगता है यार फ्रेंड्स मजाक उड़ाएंगे, फैमिली मजाक उड़ाएगी, लोग बात ही नहीं करते इस विषय पे। ये डिप्रेशन का विषय जब अपने स्कूल कॉलेज में थी, ये इतना ज्यादा बढ़ रहा था, मुझे खुद लगता है कि लोग क्यों इस विषय पे बात करनी चाहिए। हम लोगों को इतना ऐसे देखते हैं बेचारा, एक ही जो बेचारा शब्द है, मुझे नफरत है इस वर्ड से। वो पिटी जो फीलिंग आती है ना, दिस हर्ट्स मी। Nobody on this earth has a right to feel pity for somebody क्योंकि बेचारा डिप्रेशन में है। अरे साहब, अगर वो डिप्रेशन में है तो क्योंकि क्योंकि जॉइंट फैमिली कल्चर नहीं है,
लोगों के अंदर टॉलरेंस नहीं है, लोग बात नहीं करना चाहते, माँ बाप पैसे कमाने में बिजी है, माँ भी बिजी है कहीं ना कहीं। वो आपसे और मुझे आपसे ज्यादा इस बात का दुख होता है कि जो हमारी आने वाली जनरेशन हैं, जो बच्चे अभी 10th में हैं, जो अभी 15-16 साल के हैं, जो 10-12 साल के, उनकी लाइफ तो रोबोट बन के रह गई है। मुझे उनको देख के बहुत दुख होता है। एंड देन व्हेन आई सी मेरे गांव के बच्चों को, देन आई फील वेरी हैप्पी कि नहीं नहीं, कम से कम चलो ये बच्चे तो ऐसे नहीं। बिल्कुल नहीं, चेंज इज कमिंग, चेंज विल हैपन। और उम्मीद है कि टाइम के साथ देयर विल बी समथिंग गुड हैपनिंग एज वेल। ऐसे नहीं है कि ऐसे ही आई चलता रियली होप, जाएगा। I really hope. I really want people to understand this. They have to understand their culture. They have to, वापस अपने traditions के साथ जुड़े। ये joint family culture जिसके लिए हमारा देश जाना चाहता है, उसको समझें। ये डिप्रेशन चला जाएगा। थिंग्स टेक टाइम। लोगों के पास बात करने के लिए कोई नहीं है। आप बताइए, आप इतने लोगों के इंटरव्यूज लेते हैं, आपका इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल है, बट आपकी लाइफ में कितने ऐसे लोग होंगे जिनको आप कॉल करके अपना दुख बता सकते हैं? बहुत कम। कभी एक होगा, शायद कभी एक भी नहीं होगा, क्योंकि वो भी कहीं बिजी होगा। ये कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर हमें विचारना चाहिए, इन थॉट्स के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल मेरा ऐसा मानना है जी। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। एंड very important issue that you raised, especially on depression and how we should go forward trying to tackle it as well. And before I let you go, Bhakti ji, one final Yeah. word from you on, any youngsters, any young girls and youngsters, not let's not just limit it to girls, but let's limit it to the youth and youth as Yeah. a whole. Any words of advice that you would like to give to them? Yeah. So my advice, it would start from a small story. Swami Vivekananda ji said that there are 3 steps of nationalism. Okay. So now you and me, we have to decide कि हम किस स्टेप पर हैं। क्या जब लोगों को हम देखते हैं कि हमारे देश में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, रेप हो रहा है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ उनके साथ लोगों का बिहेवियर अच्छा नहीं है, लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते, तो क्या ये बात आपको चिंता देती है दिमाग में? इफ दैट गिव्स यू द फर्स्ट स्टेप। अगर आप सोचते हैं कि मुझे कुछ करना चाहिए इन समस्याओं को दूर करने के लिए, मुझे आगे आना चाहिए, मैं लोगों को कुछ आइडियाज दे सकता हूँ, मैं हेल्प कर सकता हूँ लोगों की, अगर आप ऐसा सोचते हैं, तो आप दूसरे स्टेप पर है नेशनलिज्म के। मगर अगर पूरा समाज आपके अगेंस्ट है और उसके बावजूद आप सत्य को स्थापित करने के लिए अकेले खड़े हैं, तो आप राष्ट्रवाद की तीसरी सीढ़ी पर हैं। तो जितने भी युवा इस समय, जितना भी यंग क्राउड हमें सुन रहा है, मैं उसको बताना चाहती हूँ कि अब आप डिसाइड करो कि आप कौन से स्टेप पर हो। अपने विजन को बिल्कुल क्लियर रखो कि आपको कहाँ बढ़ना है आगे। और ये समाज ना सिर्फ महिलाओं से चलता है, ना सिर्फ पुरुषों से चलता है। अगर पुरुष यहाँ पे महिलाएं अगर स्पाइनल कॉर्ड हैं, तो जो पुरुष है ना, वो हमारे L1 L2 L3 L4 हैं। जब आप हमको स्ट्रांगली आगे बढ़ाओगे, जब आप समझोगे कि हम देश के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इट इज देन दैट यू एंड मी विल ग्रो टुगेदर फॉर अ बेटर इंडिया। एंड यस, प्लीज कम इन पॉलिटिक्स। टू ऑल द यूथ ऑफ दिस नेशन, राजनीति में इंटरेस्ट दिखाओ, एनालिसिस करो, समझो। मैं ये नहीं कहती कि सब चुनाव लड़ो, लड़ना है लड़ो, नहीं लड़ना मत लड़ो, पार्टीज देखते हैं, ये सब चीज देखते हैं, बट उसके अलावा अपने राइट्स को यूज करो। आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो, उस चीज के प्रिविलेज को उठाओ, वोट करो, अपने पॉइंट्स रखो, लेटर्स लिखो, अपने आइडियाज को सरकारों के साथ शेयर करो। नो मैटर व्हाट, आज नहीं सक्सेसफुल होगा, कल नहीं होगा, मगर आने वाले समय में जरूर होगा। तो ऐसी चीजें करो। आपके आइडियाज को अगर आपको लगता है किसी विलेज में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो करो। देश को आप जैसे यंग माइंड्स की जरूरत है। आप लोग आगे आओगे तो देश का संबल बढ़ेगा, और दैट्स हाउ वील बिकम द विश्व गुरु। सो दिस इज वन सिंगल नोट विद विच आई वुड लाइक टू एंड। एंड जब से चली हूँ मेरी मंजिल पर नजर है, जब से चली हूँ मेरी मंजिल पर नजर है, मेरी आंखों ने कभी मील के पत्थर को नहीं देखा। सो डोंट सी दोस माइलस्टोन्स, जस्ट वॉक एंड बिल्कुल बिल्कुल, you have to amazing. walk the miles ahead. Yeah. Absolutely. And we should be the change that we want to be. Only then we will make a difference and only then we will go ahead. Bhakti ji, a pleasure having you on Bharata First Same and here. wonderful interacting with you. I wish you all the very best and I wish you all the success in life. And आपको जल्द ही जल्द शायद मैं पार्लियामेंट में देखना चाहता हूं, and I hope that comes true and that happens sooner rather than later. Pleasure having you on Bharata First. Thank you so much. Thank you. Thank you so much to the whole team of Bharat and Frank sir, to you and to Mishra madam for having me over here. It's completely my pleasure. Please ख्याल रखिए। जय हिंद, जय Jai किसान, जय Hind, भारत। नमस्कार। Jai Thank Bharata. you. Well, before I go, once again, let me remind you to like the video, subscribe, hit the bell icon, and share the video as well so that more people get to know about Bharata First.
Do subscribe to our newsletter to get some incisive content. The Bharata First team runs several quizzes. You can participate in them. If you like our content, please contribute to keep it alive. A small contribution that you make will go a long way in us bringing you this content. Let me also take this opportunity to inform you about Bharata First Knowledge Center, an initiative that will help each one of you in your competitive exams and transform the way you learn. Go to kc.bharatafirst.com for more details and register now. Experience a whole new way of gaining knowledge. Hundreds are already reaping the benefits of the Knowledge Center. Don't be left behind. Register right now. There's so much more that we here at the Knowledge Center have to offer. All this information, along with some must-see recommendations, are in the description of the video. Please go through it. That's it from me. See you again next time.